वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 126 है जो हमारे डिविडेंड में आगे की बात करता है। बट हम सेक्शन नंबर 126 की तरफ चले उसके पहले हम कल एक चीज देखते हैं। हमने बात की थी अनपेड डिविडेंड अकाउंट की, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कंपनी क्या देती है, उसके लिए नोटिस इशू करती है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है कि भाई नोटिस किस तरीके का होता है, राइट। कंपनी का नाम है एजिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन्होंने नोटिस इशू किया था, नोटिस फॉर द अटेंशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नोटिस इशू किया था। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं डिविडेंड या इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में उस अथॉरिटी के सामने। क्या मेंशन है? Notice is hereby giving to the shareholders of the company pursuant to section 124 subsection 6 के हिसाब से of the Companies Act 2013 read with the investor protection rules, authority accounting audit transfer refund rules 2016 as amended from time to time, that the shareholders who have not claimed or encashed their dividend for the financial year 14-15 for a period of 7 consecutive years। क्योंकि यहाँ पर यूडीए में 7 इयर्स तक आपका डिविडेंड रहता है। 7 साल के बाद वो डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो इक्विटी शेयर्स आपको कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड आईईपीएफ में। तो इन्होंने दिया है नोटिस फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए कि भाई 7 साल हो चुके हैं, अब हम ये कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, आईईपीएफ में। The equity shares in respect of which such dividends are lying unclaimed, unpaid, along with the dividend amount for the financial year 14-15, that is third interim, will be transferred to IEPF authority. In view of above, the statement containing full details of the shareholders whose equity shares dividend for the financial year 14-15 are liable to be transferred to IEPF is uploaded on the कंपनी वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया है। हमने बात की थी कि भाई 90 डेज में आपको अपलोड करना पड़ता है, इन्होंने तो एक्स्ट्रा कंप्लायंस कर दी। एंड फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी एक्शन बाय द शेयरहोल्डर, द शेयरहोल्डर कैन क्लेम द अनपेड एनकैश्ड डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी बाय कॉन्टेक्टिंग इन emailing the company registrar and share transfer agent as per the below details in the dividend are encashed on or before 30 मार्च 2022। वो बोल रहे हैं कि भाई 30 मार्च 2022 को 7 साल हो जाएंगे, हम वहां पर ट्रांसफर कर देंगे, तो जिसको चाहिए तो अब अभी तक हमसे ले सकते हैं। ये आपका इनका एड्रेस है। द कंपनी हैज वाइट इट्स लेटर डेटेड 7th January 2022, communicated individually to the latest available address of the shareholder। आपको कहां पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जो लास्ट नोन एड्रेस है वहां पर। whose dividends are lying unclaimed since financial year 14-15 till 7 consecutive years, advising them to claim the dividend expeditiously। आप फटाफट अपना डिविडेंड क्लेम कर लें। However, in view of continuing COVID-19 pandemic, there is a possibility the shareholder may face some difficulty in receiving the physical copy of the notice delivered to the registrar office। In such case, this notice may please be considered as an individual notice जो आपको सर्व हुआ है। In case of no valid claim in respect of unclaimed dividend or on or before 30th March 2022 or such date as the case may be, if any extended, कंपनी शेल ट्रांसफर कर देगी आपका अमाउंट कौन से अकाउंट में, आईईपीएफ में। और however, the concerned shareholder may claim the said shares along with the unclaimed dividend from IEPF authority by filing IEPF 5। याद रखें हमने बात की थी कि भाई सेक्शन 125 में आपको किस तरीके से क्लेम करना है, तो वेब पोर्टल पे जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा IEPF 5 online and sending the physical copy of the requisite documents specified in IEPF to the nodal officer of the company। याद करो सारे टर्म्स हमने बात की थी। Please also note that no claim shall lie against the company in respect of shares unclaimed। एक बार IEPF में ट्रांसफर हो गया फिर हमसे पैसा मत मांगना। आपको जो भी मांगना है वो सब गवर्नमेंट से जाके मांगना।
The copy of notice is also available on the stock exchange website that is called bscindia.com and nscindia.com, राइट। ये आपका पब्लिश हुआ था ये कंपनी का नोटिस। तो हमारे लिए काम का है कि भाई किस तरीके का नोटिस ट्रांसफर होता है। जैसे ही 7 साल हो गए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, द डिविडेंड रिमेनिंग स्टिल अनपेड दैट शुड बी ट्रांसफर टू द IEPF अकाउंट, राइट। चलो अब हम बात करें सेक्शन 126 की। और सेक्शन 126 क्या बोलता है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी ने अपने शेयर वर्मा जी को ट्रांसफर कर दिए। शर्मा जी ने ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंपनी को भेजी, कंपनी को मिल गई है, बट कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल कंपनी को भेजी है 22 जनवरी 2022 को। कंपनी इनके नाम पर शेयर रजिस्टर करती, उसके बीच में कंपनी ने 25 जनवरी 2022 को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, या फिर बोनस शेयर्स दे दिया, या फिर राइट इशू दे दिया, राइट। मतलब वर्मा जी के नाम पे शर्मा जी के शेयर्स रजिस्टर होते उसके पहले ही मेरी कंपनी ने या तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोनस शेयर्स दे दिए, या राइट शेयर्स दे दिए। तो लॉ ने बोला यार जो शर्मा जी के पास 100 शेयर्स हैं उन पर डिविडेंड जो मिलने वाला है 10 रुपए का, वो डिविडेंड का क्या होगा? वो 10 रुपए का अधिकार शर्मा जी को है, वो 10 रुपए का अधिकार वर्मा जी को है। ये हमारे सामने सवाल है। सवाल है 10 रुपए का, बेहद इंपॉर्टेंट काम है, राइट। ध्यान से। अब तो लॉ ने बोला ऐसे वाले केस के लिए हमने आपको सेक्शन 126 में समाधान दिया है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 126 में इसका हमने सॉल्यूशन दिया है कि भाई आपको करना क्या है। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है? सिंपल। उन्होंने बोला भाई जो डिविडेंड है, राइट, डिविडेंड है जो हमने 25 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये डिविडेंड वैसे तो हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सेक्शन 124 वाले में, बट अगर शर्मा जी बोलते हैं, कौन बोलते हैं? शर्मा जी बोलते हैं कंपनी को कि सर एक काम करो, ये 10 रुपए का जो डिविडेंड है ये आप वर्मा जी को दे दो। तो फिर लॉ ने बोला हम वो डिविडेंड वर्मा जी को दे देंगे। कहानी खत्म। बोनस शेयर्स हुए या राइट इशू हुए, लॉ ने बोला याद रखना बोनस शेयर्स या राइट इशू ये हम शर्मा जी बोलते रहे तो भी हम वर्मा जी को नहीं देंगे। कंपनी ये वाले शेयर्स का राइट है वो अपने पास रखेगी। कब तक? जब तक कि वर्मा जी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नोट डाउन नहीं हो जाता। फिर से सेक्शन 126 बात करता है तीन चीज की। पहला डिविडेंड की, दूसरा बोनस शेयर्स की, तीसरा राइट इशू की, राइट। तो सेक्शन 126 बात करता है तीन चीज की। अब कंसेप्ट क्या है? तो लॉ ने बोला कि आपकी कंपनी को डिविडेंड देना है, बोनस शेयर्स देना है, राइट इशू देना है, और शर्मा जी के कुछ शेयर्स जो उन्होंने ट्रांसफर किए थे वर्मा जी के नाम पर, अभी तक वो शेयर वर्मा जी के नाम पर नहीं लिखे गए हैं। लॉ ने बोला कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट ये होगा आपका कि जो 10 रुपए का डिविडेंड है वो किसको मिलेगा? पहला पॉइंट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, बट अगर ट्रांसफरर ने बोला है कंपनी को कि आप वो डिविडेंड ट्रांसफरी को दे दो, तो कंपनी ट्रांसफरी मतलब हमारे केस में वर्मा जी को दे देगी 10 रुपए का डिविडेंड। जब हम बात करेंगे बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की, तो लॉ ने बोला इस वाले केस में आपको क्या करना है? सिंपल, वो जो बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, वो आपको किसी को देना नहीं है। वो लॉ ने बोला कंपनी कैप्ट इन एबियंस, कंपनी अपने पास वो सुरक्षित रखेगी। कब तक? जब तक ट्रांसफरर के शेयर ट्रांसफरी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाते। ये है हमारा सेक्शन 126। चले परे भाई, सेक्शन 126 क्या बोल रहा है? राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स, bonus shares capped in ABNs pending registration of transfer of share। capped in ABNs मतलब वो सुरक्षित रखेगी अपने पास में।
where any instrument of transfer of shares has been delivered to any company for registration। मतलब शर्मा जी ने वर्मा जी का ट्रांसफर के लिए अप्रूवल दिया कंपनी को, बट कंपनी ने वर्मा जी के नाम अभी तक रजिस्टर नहीं किया, बट नॉट रजिस्टर्ड। लॉ ने बोला दो चीजें, हम डिविडेंड की बात करें सिर्फ, तो वो डिविडेंड हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सेक्शन 124 में। एक बात, अनलेस ऑथराइज्ड बाय रजिस्टर्ड होल्डर मतलब शर्मा जी, इन राइटिंग टू ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी मतलब वर्मा जी को। दो ऑप्शन, सबसे पहली बात तो लॉ ने बोला यार हम वो उठाकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, यूडीए में। लेकिन अगर किसने बोल दिया, अगर शर्मा जी ने बोल दिया कि भाई वर्मा जी को दे दो, तो फिर बात खत्म। सेकंड, कैप keep ABS in relation to such shares any offer of right shares or any issue of fully paid up bonus shares। ये है हमारे सामने सेक्शन 126 की बात, राइट। तो सेक्शन 126 बात करता है कि भाई डिविडेंड हुआ, बोनस शेयर्स हुआ, राइट शेयर्स हुआ, इनका क्या होना है। चले थ्योरी पार्ट की बात करें हम, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन एबीएंस pending registration of transfer of shares। According to section 126, in case any instrument of transfer of share has been delivered by a shareholder for registration and the transfer of such share has not been registered by the company, such company shall take the following steps। तो कंपनी कुछ स्टेप्स लेने वाली है। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द यूडीए अकाउंट, तो वो कहां पर ट्रांसफर कर देगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय अ रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। एंड कीप इन एबियंस इन रिलेशन टू सच शेयर एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। या फिर एनी इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर भाई बोनस शेयर्स का सेक्शन क्या है, 63 इन पर्संस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 5। अच्छा ये 123 सबसेक्शन 5 क्या है, रिजर्व को यूटिलाइज करके हम बात करेंगे। तो लॉ ने बोला है यार ये वाले कंसेप्ट में कि वो वाले हम आपके सुरक्षित रखे रहेंगे, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चले नेक्स्ट सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 127। सेक्शन 127 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का सेक्शन है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर या तो आपसे 123 पे सवाल पूछेगा या 124 पे, नहीं तो मान के चले सा 127 पे तो क्वेश्चन आना ही है। 127 पे सवाल क्यों आएगा, क्योंकि ये बात करता है पनिशमेंट की। और किस चीज की पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, राइट। सब डिफॉल्ट कर दी हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। कंसेप्ट क्या है हम उसको पकड़ने की कोशिश करें। लॉ ने बोला वेयर अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, मेरी कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया बट नॉट पेड, डिविडेंड को पे नहीं हो पाया, या डिविडेंड वारंट, वारंट मतलब होता है राइट, इन रिस्पेक्ट हैज नॉट बीन पोस्टेड, या तो डिविडेंड पे नहीं कर पाया या हमने डिविडेंड वारंट को पोस्ट नहीं कर पाया। कितने दिन के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट जो लिखा है 123 में, मतलब 30 डेज के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो फिर आपसे क्या हो गई यार, डिफॉल्ट। लॉ ने बोला आपने 30 दिन में डिविडेंड नहीं दे पाया या डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाया, डिफॉल्ट हो गई आपसे। आगे चलें, डिफॉल्ट हो गई तो लॉ ने बोला डायरेक्टर के केस में इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम का है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। एक बात, फाइन कितना है, 1000 रुपए पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस, राइट। जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होती है जब तक वो फाइन लगता रहेगा आपसे, ध्यान से। तो डायरेक्टर तो निपट गया भाई, 2 साल का रहना खाना फ्री है, 1000 रुपए पर डे का लगेगा फाइन पेनल्टी।
कंपनी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको पेनल्टी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पेनल्टी पूछी जाती है कि भाई कंपनी ने डिफॉल्ट करा, बता भाई डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है। तो भाई कंपनी के ऊपर तो सीधा सीधा लग जाएगा ब्याज 1.5% महीना, मतलब 18% पर एनम। कंपनी शेल बी लाइबल टू पे, वो भी कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है भाई लोग, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है जो आपको 18% देना पड़ेगा ड्यूरिंग द पीरियड टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और डायरेक्टर के ऊपर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। फाइन कितना है? 1000 रुपए पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज। आगे, बट इसके 5 केसेस दिए हैं और ये 5 केसेस में हम इनको बोले एक तरह से एक्सेप्शन है, या हम बोले कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। राइट, 1 2 3 4 5। राइट, तो सेक्शन 127 के 5 एक्सेप्शन है। इन 5 एक्सेप्शन में कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। राइट, सबसे पहला पॉइंट है वेयर डिविडेंड could not be paid by reason of any operation of any law। किसी लॉ के चलते आप डिविडेंड नहीं दे पाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्ट ने, कोई गवर्नमेंट ने कोई नियम बना दिया कि भाई कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी से किसी व्यक्ति को अगर डिविडेंड मिलना है तो जो गवर्नमेंट के ड्यूज है आपके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है आपका, वाटर बिल का ड्यू है आपका, तो पहले वो गवर्नमेंट कंपनी वो आपके वो एडजस्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई लॉ बना दिया गया तो लॉ ने क्या बोला, कंपनी डिविडेंड आपको देना चाहती है बट कंपनी नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पा रही है आपको? क्योंकि एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया लॉ ने कि भाई आपका पहले अमाउंट आपको मिलना था 1000 रुपए, 400 रुपए आपका ड्यू है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो लॉ ने बोला वो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे वहां से। राइट, ऐसा कोई लॉ डाल दिया। लॉ ने बोला वो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ आपका अमाउंट एडजस्ट हो गया। लॉ ने बोला कंपनी की कोई भी गलती नहीं है, कंपनी पर आप ब्याज नहीं मांग सकते। सेकंड एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड बट दो डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड डायरेक्शन द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझे। सेकंड पॉइंट का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल शर्मा जी को भेल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है BHEL, इस कंपनी से इनको फॉर एग्जांपल 10,000 का डिविडेंड मिलने वाला है। शर्मा जी ने क्या बोला कि यार एक काम करो सर, आप तो चाइल्ड लाइन एक NGO है, वहां पर जाकर कंपनी को डायरेक्शंस दिए कि सर एक काम करो यार, इसमें से आप 6,000 रुपए इस NGO को भेज दो मेरी तरफ से। ठीक है, तो भेल कंपनी का डायरेक्टर साहब गए, वो NGO में गए, NGO में बोला कि साहब शर्मा जी की तरफ से आपके लिए डोनेशन हमने भेजा है। उन्होंने भेजा है 6,000 रुपए का, मतलब शर्मा जी ने डायरेक्शंस दिए, कंपनी के बंदे ने कंप्लायंस करा, वो डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में 6,000 रुपए लेकर गया वो NGO में। NGO ने मना कर दिया कि भाई नहीं, जिस व्यक्ति को डोनेशन देना वो व्यक्ति खुद आए, मतलब कंपनी फेल टू कंप्लाई। और कंपनी ने इंटीमेट कर दिया किसको? शर्मा जी को, कि शर्मा जी आपके 6,000 रुपए चाइल्ड लाइन को नहीं दे पाए हम। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन है कि जो व्यक्ति देना चाहता है वो खुद आए, हम बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना दिखे। तो लॉ ने बोला ये वाला पॉइंट यहाँ है, ध्यान से सुने। वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी, शर्मा जी ने डायरेक्शन दिए कंपनी को रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड की 6,000 रुपए, 10,000 में से 6,000 रुपए आप NGO को दे जाएं, बट दो डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। सब डायरेक्टर साहब गए भेल लिमिटेड के NGO को देने के लिए, शर्मा जी के 6,000 रुपए नहीं दिए, नहीं लिए किसने? NGO ने। और वो डायरेक्टर साहब ने कम्युनिकेट कर दिया शर्मा जी को कि भाई आपके 6,000 रुपए हम डोनेशन नहीं दे पाए हैं, आप कृपया करके वो कलेक्ट कर लें हमसे और अपने पॉकेट में रख लें। उन्होंने बोला ऐसे केस में भी कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा कंपनी के एंगल से। थर्ड पॉइंट,
where there is a dispute regarding the right to receive the dividend। भाई अगर कोई डिस्प्यूट है, थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल, शर्मा जी है अब नहीं रहे, कहां चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने नोटिस लिया, शर्मा जी कहां चले गए, ऊपर चले गए साहब। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने नोटिस लिया, कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया और उस नोटिस के रिस्पेक्ट में कंपनी ने लिखा है कि शर्मा जी हैं, शेयर होल्डर हैं और इनको हम 10 लाख रुपए का डिविडेंड देना है। बट क्योंकि शर्मा जी की डेथ हो गई है तो जो भी इनके लीगल हायर्स हैं, एलआर हैं, वो आए और डिविडेंड का क्लेम कर लें। सब जैसे ही ये नोटिस पब्लिश हुआ पूरे के पूरे भारत के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और इकोनॉमिक टाइम्स में, सब अलग अलग स्टेट से 5 बच्चों ने क्लेम कर दिया। भाई नागालैंड के एक बच्चे ने क्लेम कर लिया, महाराष्ट्र ने क्लेम कर लिया, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के बच्चे ने क्लेम कर दिया कि भाई वो शर्मा जी हमारे पिताजी थे। तो लॉ ने बोला यार अगर आपका डिस्प्यूट है, आपको नहीं पता भाई कौन किसका वारिस है, तो वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, लॉ बोला कंपनी को भैया तुम रखो अपने पास में, किसी को मत दो। अभी डिफॉल्ट हुआ, 30 दिन हो गए, कोई डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्शन में कवर है। जब कोर्ट में डिसाइड होगा भाई डीएनए लेकर कि भाई कौन किसका है, राइट, तब फिर वो आपको डिविडेंड देना है, तब तक रखे रहो। मेरी कंपनी है सब रिलायंस फ्रेश, राइट। सो रिलायंस फ्रेश के शेयर्स शर्मा जी के पास हैं, रिलायंस फ्रेश से शर्मा जी सब्जी लेकर जाते हैं और रिलायंस फ्रेश का 1000 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, 400 रुपए सब्जी के बकाया है, साल भर हो गया है, शर्मा जी देते ही नहीं है पैसे, कंपनी ने उसमें से 400 रुपए काट लिए, डिविडेंड एडजस्टेड एनी सम ड्यू टू द कंपनी, मतलब डेटर है वो किसी भी तरीके से, तो लॉ ने बोला एडजस्ट करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट, where the non-payment of dividend is not due to any default of the company, अगर नॉन पेमेंट हुआ है डिविडेंड का बट कंपनी की कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो लॉ ने बोला यार कोई भी डिफॉल्ट नहीं है तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल सब शर्मा जी ने एड्रेस ही गलत दिया है अपना, जो पिन कोड नंबर सही नहीं है, तो लॉ ने बोला उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते, फोन नंबर वैलिड नहीं है, तो लॉ ने बोला इन पांचों केस में कोई ऑफेंस एक्सेप्शन में काउंट होगा। Section 127 shall apply to Nidhi Company subject to the modification that where the dividend payable to the member is rupees 100 or less, it shall be sufficient compliance की मेरी कंपनी ने तो न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट कर दिया और कंपनी ने नोटिस बोर्ड पर, निधि कंपनी के नोटिस बोर्ड पर 3 महीने तक चस्पा कर दिया कि भाई ये पर्सन्स को हम डिविडेंड देना चाहते हैं, आप अपना कलेक्ट कर ले, तो लॉ ने बोला कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। ये हमारे पास छोटा सा सेक्शन 127 है। पेनल्टी पनिशमेंट हमेशा आपको याद रखना है। चले थ्योरी नोट से देखें साहब, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। Section 127 of the Act contains the time limit for distribution of dividend and punishment for failure to distribute dividend on time. Certain exceptions from punishment are also provided. These provisions are stated as under. First point, time limit for distribution of dividend. Where a company declares dividend, company ने dividend declare किया, it must be paid or the dividend warrant thereof must be posted कितने वक्त में, 30 दिन में, from the date of declaration of dividend to the shareholder entitled to the same. Posting of dividend warrant within 30 days absolves the company from any punishment irrespective, भैया आपने 30 दिन में पोस्ट कर दिया, कंपनी के ऊपर कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, whether it is received by the shareholder concerned within the time or not. The offence is committed only when the company fails to post dividend warrant to the registered address of the member within 30 days, और 30 days कब से, सेक्शन 123 में डिक्लेरेशन से। Non-receipt of dividend warrant by the shareholder within the prescribed time does not attract any punishment. चले
मेरी कंपनी ने पोस्ट कर दिया, काम खत्म, प्रूफ करना पड़ेगा आपको। पनिशमेंट फॉर फेलियर, भाई अगर आपने कोई डिफॉल्ट करी है, इन केस अ कंपनी फेल्स टू पे द डिक्लेयर्ड डिविडेंड और फेल्स टू पोस्ट दी, आपने पोस्ट नहीं करा, याद रखना डिविडेंड वारंट को पोस्ट करना जरूरी है। शेयर होल्डर को मिला नहीं मिला, गाय खा गई, डजंट मैटर, सब आपको पोस्ट करना जरूरी है। Fails to post the dividend warrant within 30 days of declaration, following punishments are applicable. First point, every director of a company shall be punishable with imprisonment up to 2 साल का रहना खाना फ्री है। कितना लगेगा फाइन? 1000 रुपए पर डे का, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होती है। याद रखना ये पेनल्टी पनिशमेंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है। और कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 18% का। इस छोटे से 18% वाले पे सवाल आता है कि शर्मा जी 20% मांग रहे हैं सब, बट शर्मा जी 24% मांग रहे हैं, क्या देगी कंपनी? क्या ना, लॉ में मैक्सिमम कितना लिखा है? 18% का। एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट under the following cases where the company has fails to pay dividend declared within 30 days of declaration, no offense shall be deemed to have been committed and therefore no punishment is attracted. First point, where the dividend could not be paid by operation of any law, कोई लॉ की वजह से हमने डिविडेंड नहीं दे पाया, लॉ ने बोला नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, कोई टेंशन नहीं है, कोई पेनल्टी पनिशमेंट नहीं लगेगा। Second, where the shareholder has given directions to the company regarding payment of dividend and those directions cannot be complied with और communicate कर दिया गया, हमारा NGO वाला एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट, अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट अलग अलग राज्य से, सब शर्मा जी के आगे LR वाले। whether dividend has been lawfully adjusted, रिलायंस फ्रेश वाला एग्जाम्पल वहां पर। where for any reason the failure to pay the dividend warrant पोस्ट नहीं कर पाए और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो लॉ ने बोला इन चारों पांचों केसेस में आपकी कोई भी डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। एग्जम्पशन याद रखनी पड़ेगी। एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट सेक्शन 127 है, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिए, डायरेक्शंस को हमने कंप्लाई करने की कोशिश करी बट वो कंप्लाई नहीं हो पाए, कम्युनिकेट कर दिया हमने, तो लॉ ने बोला भाई आप बच गए हो, आपको कोई डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। अगर कोई डिस्प्यूट है वो बात है, रिलायंस फ्रेश वाला एग्जांपल, और कोई रीजन से हम नहीं दे पाए और हमारी कंपनी की गलती नहीं है, तो ये 127 के एग्जम्पशंस में आने वाले हैं। चल कुछ सवाल जवाब की बात करें, एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ध्यान से। पहला सवाल, मिस्टर आलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स हैं, हैज नॉट पेड रुपीज 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू ऑन द शेयर्स, बहुत बढ़िया। 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर होल्डिंग है, 80,000 रुपए नहीं दिए। Can the dividend amount payable to him be adjusted against such dues? Give reason for your answer. Right? Allowed है क्या? Yes. Fourth point में dividend adjust कर सकते हैं. Answer: yes. As per clause D of provision of section 127, whether dividend is declared by the company and there remains calls in arrear or any other sum due from a member, then the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such dues. Thus, the action of company adjusting dividend payable to Mr. Alok towards call money due on shares amounting to rupees 80,000 is justified. Therefore, no punishment is attracted for failure to pay dividend in such case. निधि कंपनी की बात करें भाई, जिन मेंबर्स को 100 रुपए या कम से डिविडेंड देना है, लॉ ने बोला टेंशन नहीं है, न्यूज़पेपर में विज्ञापन डाल दो और 3 महीने तक अपने वहां पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दो कि भाई जिसको लेना है ले सकता है, कंप्लायंस माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द एजीएम ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30 मई 2019, राइट, 30th May 2019, declared a dividend at a rate of 30% payable on an equity paid up share capital as recommended by board of director. 30% dividend देना चाहते हैं. However,
द कंपनी वॉज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर रंजन साहब, रंजन साहब को डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया। एन इक्विटी शेयर होल्डर अप टू 25 जुलाई 2019, बहुत ध्यान से, डिक्लेयर करा है 30 मई को, 30 मई से 30 दिन, मई से जून, जुलाई तक नहीं दिया, ओके डिफॉल्ट होगी ना। मिस्टर रंजन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दी कंपनी, बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब कितना परसेंट मांग रहे हैं वो, 20% मांग रहे हैं इंटरेस्ट, क्या मिलेगा ना, मैक्सिमम मिलेगा 18% का। सेक्शन आंसर क्या है इसका, सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down the penalty for non payment of dividend within the prescribed time period of 30 days. According to this section, where a dividend has been declared by the company but has not been paid, or the dividend warrant in respect of that has not been posted within 30 days from the date of declaration of dividend, किसको, to any shareholder entitled to the payment of dividend. Every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, liable है imprisonment के लिए 2 साल का रहना पाना फ्री है, 1000 रुपए पर डे, एंड कंपनी के ऊपर 18% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Therefore, in the given case, रंजन साहब सक्सीड नहीं होंगे, जो वो 20% मांग रहे हैं उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा यार, 18%। अगला सवाल, Star Computer Limited declared and paid dividend in times to all equity shareholder for the financial year 18-19 except in the following two cases. बेहद ध्यान से, बहुत ध्यान से। मिसेस शीला, मिसेस शीला भट्ट, पूरा नाम सुनो, फीलिंग नहीं आएगी, राइट। Mrs. Sheila Bhatt holding 250 shares has mandated the company to directly deposit the dividend in her bank account. Okay, मैडम ने डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दो। The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in the surname of the payee in the bank record. उन्होंने बोला यार शीला तो होगी, भट्ट नहीं है, बट The company, however, did not inform Mrs. Bhatt about this debt discrepancy. तो यहाँ गलती कर दी भाई, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई। आपको इंटीमेट करना है शेयर होल्डर को कि आपका हमने कंप्लायंस नहीं कर पाया। अगर ये लाइन है तो फिर तो समस्या है, पेनल्टी लग जाएगी। चलो एक और सवाल, डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view of the court order restraining the payment due to the family dispute about succession. कोर्ट में भाई डिस्प्यूट चल रहा है, सक्सेशन कौन, सक्सेसर कौन होगा, इसलिए डिविडेंड नहीं दे पाए एलआर को। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालिसिस द प्रोविजन। ठीक है भैया, पहले वाले का जवाब क्या है, सेक्शन 127 प्रोवाइड द पनिशमेंट पार्ट। ठीक है, वन ऑफ सच सिचुएशन इज, ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 की 5 सिचुएशन अट्रैक्ट नहीं होने वाली है। अरे भाई फर्स्ट केस में हमारी दूसरी सिचुएशन अट्रैक्ट होने वाली है, राइट, और इसमें फर्स्ट सिचुएशन, तो हमको क्या लिखना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है एग्जाम में, वन ऑफ सच सिचुएशन इज, फिर अपना हम लिख दें where a dividend has been given to the shareholder of the company regarding the payment of dividend, sorry, where the directions has been given to the company regarding the payment of dividend and those direction could not be complied but the non compliance was not communicated to him, ये दिक्कत है। In the given case, the company has fails to communicate to the shareholder Mrs. Sheila Bhatt about non-compliance of her direction regarding payment of dividend. Hence, the penal provision 127 वाले लग जाएंगे, 2 साल का रहना खाना फ्री है, 1000 रुपए का खर्चा है पर डे का, और 18% का ब्याज है। Second, section 127 inter alia provides that no offence shall be deemed to have been, अगर डिविडेंड नहीं दिया गया due to operation of law। चलो भाई खत्म बात। However, there will not be liability on the company and its director। एक और सवाल, PQ Limited declared and paid 10% dividend to a shareholder except Mr. Kumar holding 500 equity share who instructed the company to deposit the dividend amount directly to the bank account, right?
सब इन्होंने भी डिस्क्रिपेंसी है, अकाउंट नंबर में समस्या है यहाँ पर, वो टेलीन्यूरा रिकॉर्ड से आपने कम्युनिकेट नहीं किया। However, did not inform Mr. कुमार about their discrepancy, कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया, तो हम वही लिखेंगे कि भैया 127 में एग्जामिशन में एक सिचुएशन है ये वाली कि अगर कोई शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिए हैं, आपने उनका नॉन कंप्लाई मतलब आपने कंप्लाई नहीं कर पाया बट कम्युनिकेट कर दिया शेयर होल्डर को, तो कोई समस्या नहीं है। कम्युनिकेट नहीं करा, लग गई 127 की पेनल्टी, इस केस में भी लग जाएगी। आगे, the BOD of next question, the BOD of Fortune Fashion Limited at a meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholder at the AGM. Okay. Thereafter, the director at another meeting of the board passes a board resolution for, जो हम डिविडेंड का अमाउंट देना चाहते हैं उसको हम और कहीं फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में सब 45 दिन हो गए। द डिविडेंड वाज पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर 45 डेज। याद रखना रूल क्या लिखा, 30 दिन में पेमेंट करना है। 30 दिन के बाद लगी डिफॉल्ट, 15 दिन की डिफॉल्ट लग गई है, 15,000 रुपए तो वो लग गए आपके। Examine the provision of the Companies Act 2013. State whether the act of director is in violation. Yes, बिल्कुल है भैया 127 में, राइट। 124 में क्या लिखा है, 30 दिन में देना है, नहीं दे पाए तो 7 दिन में यूडीए में ट्रांसफर करना है, वो समस्या है। फर्दर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, डिविडेंड आपको डिविडेंड देना है बट नॉट पेड या वारंट पोस्ट नहीं कर पाया 30 दिन में, तो समस्या है वहां पर। इन द प्रेजेंट केस, the BOD of Future Fashion Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholder at the AGM. Thereafter, डायरेक्टर को दूसरा मौका मिल गया, उन्होंने थोड़े पैसे ज्यादा कमा लिए, 45 दिन के तक नहीं दिया डिविडेंड, not been paid within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend. The company shall within 7 days from the date of expiry of said period of 30 days ट्रांसफर कर देगी कहां पर, आपका अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ये रहे आपके कॉन्सिक्वेंसेस। सेम कॉन्सेप्ट है भैया, 2 साल का रहना खाना फ्री है, 1,000 रुपए पर डे, और इंटरेस्ट कितना है यार, 18% का। ये समस्या है यहाँ पर। चलो, अब हम बात करें कुछ कुछ एमसीक्यू सवाल की डिविडेंड के ऊपर, ओवरऑल पूरे के पूरे डिविडेंड के ऊपर हम बात करें, राइट। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड मे बी डैश बाय द मेंबर। क्या जो रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज किया है किसके द्वारा, प्रपोज बाय हुम, बोर्ड के द्वारा, क्या शेयर होल्डर उसको इंक्रीज, reduced, both A and B, none of these। क्या उस रेट को हम शेयर होल्डर इंक्रीज कम कर सकता है, दोनों कर सकता है, या कुछ नहीं कर सकता, बताएं साहब क्या जवाब है आपका। हमने बात की है ऑलरेडी सबसे पहले लेक्चर में ही कि भाई आप अगर ऐसा केस हुआ, याद रखना आप रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस्ड कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, आप रिड्यूस कर सकते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हैं आपको, स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट अ एजीएम इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। बिल्कुल सही है, तो भाई हमने पढ़ा है, सेक्शन 102 को रिकॉल करें, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एक। सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट 2, द स्टेटमेंट 2 है, अ कंपनी में पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन शेयर इफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। भाई ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड क्या होता है, राइट। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ओनली स्टेटमेंट, देखो भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, 2A is the correct answer in that case. Question third.
The dividend for any financial year can be declared or paid out of. डिविडेंड के सोर्सेस क्या हैं? सेक्शन 123 को रेफर करो भाई. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर सॉरी करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट कर देना. एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन्स ऑफ एनी गारंटी. सेक्शन 123 में ये पॉइंट्स लिखे हैं, राइट. तो प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर बोले तो करंट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर और रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ए एंड बी और बोथ ए एंड बी एंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 में सभी सही ऑप्शन है, तो 3D इज द करेक्ट आंसर. चौथा सवाल. A company shall not declare any dividend on dash if it fails to comply. भैया सेक्शन 73-70 ये बात करते हैं किस चीज की? क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात करते हैं किस चीज की? डिपॉजिट्स की, राइट. अगर आपने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है तो समस्या है. तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, राइट. ये समस्या है. किस पे? इक्विटी शेयर होल्डर पे. याद रखना प्रेफरेंस में तो देना है. क्वेश्चन 5 की बात करें. क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर द डिविडेंड शैल बी पेड टू. पहला पॉइंट, द जॉइंट होल्डर हु इज ऑथराइज्ड बाय ऑल जॉइंट होल्डर इन दिस रिगार्ड. ऑल द जॉइंट होल्डर, द जॉइंट होल्डर यही रहता है नॉर्मली यार, जिसका नाम पहले लिखा होगा उसको मिलता है. सी, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन डैश इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन. ओके, आपको जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है. याद रखें सेक्शन 123 का रेफरेंस भाई नेशनलाइज बैंक में 5 दिन में आपको जमा करना पड़ता है, राइट. और नेशनलाइज बैंक है या शेड्यूल बैंक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना. वहां पर वर्ड लिखा है शेड्यूल बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक भी उसमें शामिल है, राइट. सो करेक्ट आंसर इज शेड्यूल बैंक. 5 डेज में आपको जमा करना पड़ेगा. चल, 7th क्वेश्चन. If a company fails to transfer the unpaid unclaimed dividend to the unpaid dividend account, the company shall be liable to pay interest per at the rate per annum. कितना परसेंट? अगर कंपनी ने नहीं दिया तो कितना परसेंट आपको देना पड़ सकता है? याद रखो, अगर आपने, मतलब ये 124 वाली बात कर रहा है, राइट. 12% अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं गया. क्वेश्चन नंबर 8. Any money transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid for dash from the date of transfer shall be transferred by the company along with the interest to the IEPF. 7 साल तक सबको पता है भाई, गली गली में शोर है. क्वेश्चन नंबर 9. All such share in respect of which dividend has not been paid or claimed for dash shall be transferred by the company in the name of IEPF, right. तो आपको कहां पर ट्रांसफर करना है? वो IEPF में ट्रांसफर करना है, राइट. 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक का है. कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार. क्वेश्चन नंबर 10. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, ये बात करेगा 125 की. By notification authority for administration of the IEPF consisting of chairperson and such other person not exceeding. कितने बंदे? 7 पर्सन. याद रखे चार्ट्स में साफ साफ मेंशन है कि 7 से ज्यादा नहीं होंगे अथॉरिटी में. क्वेश्चन नंबर 11. जो भी आपने द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द IEPF शैल नॉट बी यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए यूज नहीं करना है? देखो भाई, रीइंबर्समेंट के लिए यूज करते हैं, रिफंड के लिए यूज करते हैं, ग्रांट और डोनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्जर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल. ये वाला पॉइंट है, यहां पर नहीं करना है आपको, राइट. और ये पॉइंट ABD में यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. वेयर अ ट्रांसफर डीड हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन. नहीं हुई. But the transfer of share has not yet been registered by the company. The company shall pay the dividend to the registered shareholder if it is authorized by the article. नहीं. Pay the dividend to the transferor if the transferee has authorized the company to do so. Transfer the dividend in relation to IEPF और transfer in relation to कौन से अकाउंट में?
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, याद रखना ये वाला पॉइंट सही है। ट्रांसफरर बोलेगा ट्रांसफरी को दे दो, बी पॉइंट अलग बात कर रहा है। बी क्या बोल रहा है, ट्रांसफरी बोल रहा है, ट्रांसफरर को दे दो, गलत है, राइट। सो 12D इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, where a transfer deed has been delivered to the company for registration but transfer of shares has not been registered by the company, any offer of right shares, ना ना ना, ये गलत है, ये गलत है, shall remaining pending, right। एबियंस वाला सवाल, राइट। तो आपको यहां पर ये रखना है संभाल कर। 14th क्वेश्चन, द डिविडेंड शैल बी पेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ, ऑप्शन क्या है, 30 दिन डिक्लेरेशन, 7 दिन डिक्लेरेशन, ना ना ना, 30 दिन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन से लायबिलिटी बनती है, रिकमेंडेशन से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, डिविडेंड अदर देन इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय ए बोर्ड, बी मेंबर, सी either A और B और D both A and B, right। B क्या है आपका, मेंबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर मनन, a member of Moksha Limited has given directions to the company regarding payment of dividend, but those directions could not be complied with. Consequently, dividend could not be paid to Mr. Manan. Consider the following statements. बहुत ध्यान से, ओके कंप्लायंस नहीं करा, कंसीडर करें, डिविडेंड कुड नॉट बी, ठीक है ठीक है ठीक है। Statement 1, Moksha Limited has contravened the provision of section 127 and therefore liable for a penalty under section 127. कम्युनिकेट नहीं करा तो समस्या है यार, राइट। स्टेटमेंट 2, in case a company contravenes the provision 127 liable for a interest of 12% कहाँ लगता है भाई, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चले क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोला, द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर for which the interim dividend is sought to be declared. Third statement, the board may declare interim dividend out of profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. Statement 4, the board may declare interim dividend out of, मतलब ये बात कर रहा है पूरी की पूरी interim dividend कि भाई interim dividend आपको declare कब करना है, दो AGM के बीच में, AGM कंप्लीट होने के बीच में। तो अगर अपन देखें ये रिजर्व वाला तो काम खत्म ही है, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सो आपका 17 का सी बिल्कुल सही है कि बोर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो सरप्लस दिख रहा है। बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम डिक्लेयर करने वाले हैं, या जो उस क्वार्टर के पहले तक का जो प्रॉफिट है उसमें से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, if the company has incurred loss up to dash, इंटरिम डिविडेंड की बात करें, जिस क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले उसके पहले तक लॉस है, ये कंसेप्ट है 123 में। इफ अ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस अप टू dash immediately preceding the date of interim dividend, then the rate of interim dividend shall be higher than the, okay, 3 financial year, right। So the end of the financial year quarter ना, the end of the quarter ये वाला है कि यहां तक आपको लॉस है और 3 साल से ज्यादा की रेट मत लेना। So 18B is the correct option। 19th statement वाला, the board may declare the interim dividend whether or not it is authorized by the articles। statement 1 है। स्टेटमेंट 2 है, द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज टू बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक in a separate bank account within 7 days of passing the board resolution declaring the interim dividend, right। the board may declare interim dividend whether or not is, बिल्कुल सही है भाई, बोर्ड को पावर है, ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। so statement 1 is correct।
Question number 20. A Limited proposes to declare dividend out of accumulated profit earned by it in the previous year and they transfer to free reserve. The rate of dividend declared by it shall not exceed the average rate at which the dividend was declared by the immediately preceding. कितने साल का? 3 साल का जवाब है. And the total amount drawn from the reserve shall not exceed. बहुत बढ़िया, 1/10 है. सिंपल सवाल है यार. कौन सा है? 20th. 3 years 1/10, right? 21st. B Limited has incurred loss for the financial year 17-18. However, for the financial year 17-18, B Limited proposes to declare dividend out of पुराने वाले profit में से and the transfer to free reserve. Consider the following statement, right? Statement 1 क्या बोल रहा है? The total amount to be drawn from the reserve shall not exceed 1/20th of the sum. Okay, ये तो गलती है. Statement 2 क्या बोल रहा है? Any amount drawn from reserve shall first be utilized current year के losses. बिल्कुल सही है. ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही है. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल ना 15% है ये, राइट? 10% नहीं है. सो स्टेटमेंट 2 सिर्फ करेक्ट है हमारे पास, राइट? चलो, इसी के साथ में हमारा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. याद रखना, डिविडेंड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आ सकता है. सेक्शन 5 है, 123, 124, 125, 126 एंड 127, राइट? बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में काम का भी कॉन्सेप्ट है. थैंक यू.